चाहता, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता, देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर। Praise the Lord, Church. Welcome to online service, Sunday 20th September 2020. I want to start with Bible verse for this morning, Ephesians 2 verse 20. Built on the foundation of apostles and prophets with Christ Jesus himself as the sure cornerstone. We are still in the lockdown. Physically we are not in the church, but as the Bible says, Jesus is our cornerstone. We all are connected and joined to him. Keep praying and renew your strength. Also, Bible says that greater is he that's within us than things of the world. Let's pray and give this moment into Jesus' hands. Thank you, Lord, for this beautiful morning. Thank you for giving this air to breathe, food to eat, place to rest, family and friends to be with. Lord, you have created us all and all things in this world, and I know that you are in control. I give everyone in your hands and let your will be done in our lives as you have planned. In Jesus' name, amen.
This week's announcements are as follows. Just a quick recap on COVID-19. Level 2.5 restrictions in Auckland remain in place until midnight coming Wednesday, 23rd September. We will know tomorrow whether these restrictions will continue after Wednesday. For Auckland, this still means no gathering of more than 10 people. Hence, our Sunday church service will continue online until this restriction is lifted. We ask you all to stay safe, remain within your bubbles as much as you can, wear face masks where possible, and continue to pray for our country and each other. The government has mandated that all businesses in public buildings should display the COVID Tracer QR code. We now have the QR code displayed around our church. If you have downloaded the app, please record your visit using the app every time you are in church. If you don't have the app, please keep a record of your visit to church. A reminder that daylight savings will start from next Sunday, September 27th. Clocks go forward 1 hour. Than to have a world party on the day you came to be. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
प्यारे दोस्तों, सभी को स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर आज इसी माध्यम से। और हम धन्यवाद देते हैं जो आप लोग चुन किया है आज प्रभु के वचन को सुनने के लिए। और हम जानते हैं कि प्रभु आज हमारे बीच में है, क्योंकि प्रभु का वादा है हमारे साथ रहने का हर समय, हर घड़ी, हर पल, हर क्षण। एंड एवरीवन इज़ वेलकम इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। एंड once again we are sharing the word of God, and we thank you for joining in. Praise the Lord. Hallelujah. Let's all pray. हम लोग इस समय दुआ करेंगे और परमेश्वर आशीष को मांगे जैसे हम प्रभु के वचन में जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जी, यीशु मसीह तेरे पवित्र चरणों में झुकते हैं, वंदना करते हैं, हृदय को तेरे सामने लेकर आते हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर इस समय के लिए, जबकि पिता हम आपके वचन को लेकर आए एक बार फिर। प्रभु जी, दुआ करते हैं आप हमें अभिषेक करना हमारे ज़ुबानों को, और जितने कान इसको सुनेगा परमेश्वर, उन सभी को तू चुना, उनके दिल दिमाग को मेरे पिता आपके वचन के दिल के गहराई में छिप सके। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। फादर गॉड, आई प्रे दैट यू ब्लेस ईच एंड एवरी वन ऑफ अस as we hear and as we share the word of God. And Lord, it may take a lodging place in the hearts of the people. In Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Right. आज हम लोग प्रभु के वचन में जाएंगे, और हमारा जो आज पढ़ने का वचन है ये है, मिलता हमें जॉन चैप्टर 3 वर्स 16। बहुत ही जाना माना वर्स है। वी विल रीड दिस मॉर्निंग book of John. Saint John chapter 3 verse 16 is very well known verse, and people have said that it's a golden verse of the Bible. Praise the Lord. और ये जो है खास मुख्य वचन है। lot of people memorized it. When people get saved, they come to know this verse very well. हम जानते हैं बहुत सारे लोग इसको याद किया है ये वचन को। जब मसीह में हम आते हैं, प्रभु को यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं, पहला वचन जो है इसको हम लोग लेते हैं, इसको सीखते हैं और इसको दोहराते हैं। Praise the Lord. So my topic this morning is purpose of God for all humankind. परमेश्वर के उद्देश्य हम सारे मानव जाति के लिए, यही हमारा उद्देश्य है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम जानते हैं कि हमें पनाह पाने के लिए परमेश्वर ने कुछ उपाय किया है, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। जिस तरह से वचन हम लोग को दिया गया है, और ये जो वचन है, इट इज़ अ की टू आवर फेथ। ये हमारे मसीहत के लिए बड़ा ख़ास शब्द है, वचन है। और जिस तरह से ये जो सुसमाचार है, इसी के बीच के शब्द है ये फुल गॉस्पल, and it is a good news, and this verse shares the good news and gives us the good news of the Bible. Praise the Lord. ये हमें खुशखबरी देता है और शुभ संदेश देता है। ये वचन में छिपा हुआ है, इसको हम लोग आज बांटेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखता है कि ये जो वचन है सारे जाति के लिए, सारे कौमों के लिए, सारी दुनिया के चारों दिशाओं के लिए ये वचन है, और इसको हम लोग देखेंगे। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने ये हमारे लिए दिया है ताकि हम इसको जान सकें। और परमेश्वर जो है ये जो वचन है इसमें 4 भाग को हम करके देखेंगे कि ये हमारे लिए क्या रखा इसमें। प्रेज द लॉर्ड। This verse is Christian belief hangs on this verse. It will make it in 4 sections. 4 भाग में उसको देखेंगे। It is a core verse for us to stand on. Praise the Lord. Hallelujah. So let's break it in 4 parts to have a better understanding. हम लोग क्यों नहीं इसको 4 भागों में करके देखेंगे, 4 सेक्शन में, और कि ये हमसे क्या कहता है आज। Praise the Lord. तो हम इसको पढ़ते हैं। कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. Praise the Lord. ये बात प्रभु ने हमसे कहा है, और आज हम लोग देखेंगे इसको। पहला जो भाग है वो है गॉड लव द वर्ल्ड। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जो है दुनिया को बनाया, सारे सृष्टि को बनाया, सारे भूमंडल को बनाया। गॉड हैज फैशन दिस वर्ल्ड एंड ही मेड इट एंड क्रिएटेड एवरीथिंग, एंड गॉड मेड अस ह्यूमन बीइंग एज वेल। वी आर हिज क्रिएशन। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का सृजा हुआ
हम लोग हैं, उसके हाथ की रचना है। और अगर हम लोग रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 5 को देखेंगे, कहता है द लव ऑफ गॉड इज शेड अब्रॉड। क्यों नहीं हम इसको देखेंगे इस समय, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 5 को ये कहता है, एंड होप डज नॉट डिसअपॉइंट बिकॉज द लव ऑफ गॉड हैज बीन पोर्ड आउट विद इन आवर हार्ट्स थ्रू द होली स्पिरिट हु हैज गिवन अस। हिंदी में कहता है, और आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखता है कि परमेश्वर का जो प्रेम है हमारे मन में डाला गया। ग्लोरी टू गॉड। सो परमेश्वर का जो प्यार है हमारे अंदर में, यीशु मसीह को हम ले लेते हैं तो परमेश्वर के प्रेम को हम पहचान लेते हैं, जान जाते हैं। एंड गॉड इज अ ग्रेट लव फॉर अस। परमेश्वर शुरुआत से हमारे ऊपर अपना छाया किया हुआ है और हम मनुष्य मानव जाति से खासकर उसका अति प्यार है या प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों परमेश्वर हमसे प्यार करता है? Why God has to love us? Because we are His handmaid. He fashioned us, He created us. ना जब परमेश्वर ने मिट्टी को लिया, मिट्टी सान कर, मिट्टी गूंज कर अपने रूप अपने स्वरूप में हमें बनाया। और तो हम देखता है कि परमेश्वर के जो हाथ के रचना हम है तो वो हमसे प्यार करता है, इंसान से प्यार करता है, क्योंकि हम उसके चरित्र में बनाए गए, हम उसके इमेज में बनाए गए। वी आर मेड इन हिज इमेज एंड इन हिज लाइकनेस, एंड दैट्स व्हाई गॉड लव्स अस, बिकॉज वी हैव हिज ब्रेथ इन अस। उसका जो श्वास है हमारे अंदर में है, राइट। मिट्टी के पुतला को परमेश्वर ने बनाकर उसमें जब श्वास फूका तो वो जो मिट्टी का पुतला था, आदम जो था, वो सांस बाहर भीतर लेना शुरू किया और वो खड़ा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। उसके अंदर में परमेश्वर के प्राण आ गया। तो इस तरह से हम जानते हैं कि वो पहला इंसान बना। परमेश्वर ने उसका अपने हाथ के रचना को देखकर उससे अति प्रभावित हुआ और उससे प्यार किया और उसको चाहा कि उसकी वो महिमा करे सर्वदा के लिए। गॉड, व्हेन गॉड क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग एंड व्हेन ही ब्लू हिज ब्रेथ इन हिम and he started breathing in and out, and so God loved his creation and he wanted him to worship him forever. Praise the Lord. यही परमेश्वर का मकसद था। और हम लोग देखता है कि कोई भी चीज़ जो हमारा होता है, जिसके लिए हम दाम चुकाते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो हमारे काम में आए और उससे हमारा प्रेम बढ़ता है और उससे हमारा लगाव होता है। क्यों? क्योंकि हम उसके लिए बहुत बड़ा कीमत चुकाए हैं। प्रेज द लॉर्ड। when we get something by paying a high price, we value it, we don't want to lose it, and we want to have it for us, for ourselves. Praise the Lord. And हम लोग देखता है कि परमेश्वर ने इंसान को बनाया है। Psalms 139 verse 14 में कहता है, He made us with fearfully and wonderfully created us. Praise the Lord. परमेश्वर ने भय खाकर ना बड़े इत्मीनान से हमें और आपको रचा है। Praise the Lord. Hallelujah. Jeremiah chapter 31 verse 3 कहता है कि I have loved you with an everlasting love. Praise the Lord. मैं तुम्हें सदा प्रेम रखता आया हूँ। Praise the Lord. सिर्फ थोड़े समय के लिए नहीं, सिर्फ अदन के बगीचे में नहीं, हम जानते हैं कि परमेश्वर सर्वदा सदा हमसे प्यार किया है। इसीलिए उन्होंने लोगों को हमारे पास भेजता रहा भविष्यवक्ताओं के रूप में, और ताकि हमें सही मार्ग पर लेकर आए। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखता है कि जब परमेश्वर अदन के बगीचा में डाला था आदम और हवा को, हम जानते हैं कि उनके जो डिसोबीडियंट कारण से ना, बिकॉज ऑफ द डिसोबीडियंट इट सेपरेटेड देम फ्रॉम गॉड and his fellowship and his relationship was broken. हम देखते हैं कि आज्ञाकारी ना होने के कारण से, आज्ञा तोड़ने के कारण से परमेश्वर और वो जो पहला परिवार था उनमें विभाजन आ गया, उनका जो रिश्ता टूट गया, उनका जो मेल था वो ख़त्म हो गया। एंड परमेश्वर चाहता था कि वो रिश्ता को कायम रखे सर्वदा के लिए, इसीलिए परमेश्वर ने उसको रचा। जिस तरह से हम किसी चीज़ की कीमत चुकाते हैं, हम चाहते हैं उसमें सर्वदा वो हमारे लिए सर्वदा के लिए रहे, हर समय के लिए रहे। और हम देखता है कि जब इंसान परमेश्वर के साथ में उसका रिश्ता टूटा तो उसको जुड़ने के लिए एक पेनल्टी
जुर्म उसमें जुर्माना है और जुर्माना है एक बलिदान. When there is a breakdown, disobedience came, the sin came, and to pay the penalty for the sin is sacrifice. And so we see that there needs to be a sacrifice, there needs to be somebody to come and reconcile. And what God decided, He decided to send His Son to reconcile, to bring us back in the fellowship with God. तो हम देखता है कि परमेश्वर ने जगत से और हमसे आपसे इतना प्यार किया है, तो उन्होंने सोचा कि लाओ हम ये रिश्ता को जोड़ने के लिए अपने बेटे को भेजूं दुनिया में. प्रेज द लॉर्ड. सो दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है, जबकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, हमसे और आपसे इतना प्यार किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया. प्रेज द लॉर्ड. सो नंबर 2 पॉइंट इज ही गेव हिज ओन बिलवड सन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो हम लोग देखता है कि जॉन चैप्टर 1 वर्स 14 में हम देखते हैं, ये कहता है कि एंड द वर्ड बिकेम फ्लेश एंड ड्वेल्ट अमंग अस एंड वी सो हिज ग्लोरी एज ऑफ द ओनली बिगॉटन फ्रॉम द फादर फुल ऑफ ग्रेस एंड ट्रूथ. हिंदी में कहता है, और वचन देदारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने प्रिय बेटे को इस जगत में भेजा, और यहाँ पर कहता है कि द वर्ड बिकेम फ्लैश. ये जो शब्द है देदारी हुआ और हमारे बीच में डेरा डाला. प्रेज द लॉर्ड. तो हमने देखता है कि परमेश्वर का जो वचन है, द वॉइस फ्रॉम द हार्ट बीट ऑफ गॉड बिकेम अ पर्सन ऑफ जीसस क्राइस्ट द सन ऑफ गॉड. परमेश्वर का जो दिल के धड़कन है, उसकी जो आवाज़ दिल की है, वो एक इंसान बन गया, और वो है मसीह यीशु, परमेश्वर का पुत्र. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो हम देखता है कि ये जो परमेश्वर का पुत्र है, ये हमारे लिए बहुत ही प्रेशियस है, बहुत ही बहुमूल्य है. He became a very precious person in our life. Praise the Lord. Not like any other prophet. तो हम देखता है कि उसके तरह कोई ना है ना कोई रहेगा. और हम देखता है कि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के पुत्र हमारे ज़िंदगी में आया और हमारे लिए कार्य किया है, और हमें परमेश्वर का जो चरित्र है उसको पृथ्वी पर दिखाया है. And God is, Jesus has shown God through his character and his, dealings and whatever he has done. And he said, if you've seen me, you have seen the Father. जब हम यीशु मसीह को पहचानते जानते हैं, वचन में देखते हैं, तो हम पिता को देखते हैं. प्रेज द लॉर्ड. तो हम जानते हैं कि परमेश्वर जो पवित्र है वो उस पृथ्वी पे आ सकता ज़रूर, मगर उसको देखकर लोग ऐसे उसके सामने आ नहीं सकते हैं, क्योंकि हम पापी इंसान हैं. परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है मगर पाप से घृणा करता है. हम जब पापी लोग हैं तो परमेश्वर हमारे सामने आ नहीं सकता, हम भस्म हो जा सकते हैं. राइट, हम मिट जा सकते हैं. इसीलिए परमेश्वर ने उचित समझा कि अपने प्रिय बेटे को भेजे, अपने आवाज़ अपने शब्द को भेजे, ताकि वो हमारे बीच में आकर हमें बचा सके. प्रेज द लॉर्ड. तो हम लोग देखता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर के पुत्र, ये एक बलिदान बना, हमारे लिए बलि का बकरा बन गया, जबकि हम पाप में थे और हमारे जगह पर उन्होंने अपना जीवन देने के लिए आया. प्रेज द लॉर्ड. ताकि हम मुक्त हो सके, हम आज़ाद हो सकें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो हम देखता है कि परमेश्वर के पुत्र जो है पिता की ओर से हमारे बीच में आया. परमेश्वर ने जब इंसान से प्यार किया, उन्होंने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, अपने आप को मसीह यीशु के रूप में आकर हमारे जीवन में डेरा डाला, हमारे बीच में आकर अपना कार्य किया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. राइट. तो हम लोग देखता है कि दो बातों को हम लोग देख चुके हैं. परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है, फिर उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया. तीसरा बात हम देखेंगे कि
जो कोई इस पर विश्वास करे, जो कोई इस पर ईमान लाए, जो कोई इस पर भरोसा रखे, जो कोई उसके करीब आए और उसको अपनाए अपने जीवन में, अपने जहन में ले, अपने हृदय में ले। प्रेज द लॉर्ड। गलतियों की पुस्तक को हम देखेंगे इस समय। गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 28 में हमारे लिए क्या कहती है, हम देखेंगे इसको। रेडी कहता है, देयर इज नाइदर ज्यू नॉर जेंटाइल, there is no slave or free or male or female। और हम देखते हैं यहाँ पर is open for anybody। गलेशियन में ये कहता है कि न तो कोई यहूदी, ना तो कोई यूनानी, ना तो कोई बंधुआई, ना कोई आज़ाद में है, ना तो कोई पुरुष है, ना तो कोई स्त्री है। और परमेश्वर हर एक के लिए आया है। प्रेज द लॉर्ड। वो सभी के लिए आया है, सब कौमों के लिए आया है, सब जाति के लिए आया है। और बछड़ते जो कोई इस पर ईमान लाए, प्रेज द लॉर्ड, कोई भी क्यों ना हो, चाहे आप काला हो, चाहे आप गोरा हो, चाहे आप पढ़ा लिखा हो, पढ़े से पढ़े लिखे हो, गुणवान हो, चाहे तू अनपढ़ से अनपढ़ हो, ना काला चारों भैंस बराबर के कहते हैं लोग, चाहे तुम संत हो या तुम एक द्रोही हो, कैसा भी इंसान क्यों ना हो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हरेक के लिए आया है। यहाँ पर कहता है जो कोई इंसान उस पर ईमान को लाएं, उस पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास को लाएं और उसको अपनाएं अपने जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखता है कि जो कोई उसके अंगीकार करता है, रोमन चैप्टर 10 वर्स 9 में कहता है। तो हम जानते हैं अगर उसको हम अपने मुख से अंगीकार करते हैं कि वो यीशु मसीह जो जगत में पैदा हुआ और उसको मारा गया, उसको क्रूस पे लटका गया और मरकर उसको कब्र में गाड़ा गया, 3 दिन के बाद वो जी उठा। अगर हम ऐसे विश्वास करेंगे, उस पर ईमान लेकर आते हैं, तो हम जानते हैं कि वो इंसान परमेश्वर को स्वीकार होता है, वो उसको परमेश्वर बचाता है। प्रेज द लॉर्ड। और हम जानते हैं सिर्फ विश्वास करने से, ईमान लाने से, प्रेज द लॉर्ड, ओनली वी हैव टू बिलीव, राइट। अगर हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह एक देश के लिए नहीं आया, सिर्फ एक कौम के लिए नहीं आया। उन्होंने कहा कि दुनिया में जाओ, सब जातों में, सब भाषाओं में, सब कौमों में जाकर मेरे नाम की प्रचार करो। प्रेज द लॉर्ड। तो हम दिखता है कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया के बीचों बीचों पैदा हुआ और सबके लिए, प्रेज द लॉर्ड, इज़राइल में पैदा हुआ जो दुनिया के सेंटर है। और वहाँ से हम जानते हैं उसके वचन दुनिया भर में जाता है और गया है और जाता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस तरह से हम जानते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने इंसान से, मानव जाति से प्यार किया है कि उसने अपने इकलौता पुत्र दिया है, उसके पुत्र के बराबर कोई दुनिया में ना था, ना कोई है, ना रहेगा। और हम देखता है कि वो कहता है कि जो कोई इस पर ईमान लेकर आएगा, जो कोई इस पर भरोसा रखेगा, राइट, कैसा भी इंसान क्यों ना हो, एक क्रिमिनल हो जो इतना ज़्यादा गुनाह किया हो, सिर्फ अगर उस पर विश्वास कर लेता है तो हम जानते हैं कि प्रभु उसको अपना लेता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इस तरह से हम देखता है कि अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आज हमसे कहता है कि उसके लिए एक इनाम है, एक प्राइज है, एक वरदान है या गिफ्ट है हमारे लिए रखा हुआ, वो है अनंत काल। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया ताकि जो इंसान उस पर विश्वास करेगा वो नरक में नहीं जाएगा मगर वो अनंत जीवन स्वर्ग में जाएगा, सदा काल के लिए सर्वदा उसके साथ में रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम लोग आज एक वचन और देखेंगे, प्रकाशित वाक्य रेवलेशन में हम देखेंगे। रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 4 में कहता है, हिंदी में पढ़ते हैं, और वह उनकी आंखों से सब आंसू में पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहले बातें जाती रही। अंग्रेजी में कहता है, एंड ही विल वाइप अवे एवरी टीयर फ्रॉम देयर आईज एंड देयर विल no longer be any death, there will no longer be any mourning or crying or pain, the first things have passed away. Praise the Lord, hallelujah. तो प्रभु यीशु मसीह आज हमसे ये कहता है कि हम जो यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए, विश्वास कर लिए हैं, तो हमारे लिए स्वर्ग धाम है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हमारे आंखों के आंसू पोंछ डालेगा। और ये जो पीड़ा है दुनिया में, जो संसार में भाग दौड़ है, ये जो
जो समस्या हम झेलते हैं हर एक दिन, हर एक समय, और झेलता रहेंगे जब तक मृत्यु न आए, तो हम जानते हैं ये सब से हम पनाह पाएंगे जब हम स्वर्ग स्थान में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हेवन जो है वो आनंद का जगह है, स्वर्ग जो है हमारे लिए खुशियाँ का जगह है। यहाँ पर कहता है कि हमारे आंखों में से सब आंसू पोंछ डालेगा, हमारे दुख को दूर कर देगा, हमारे दर्द को हटा देगा, और वहाँ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ रहेगा परमेश्वर के राज्य में। प्रेज द लॉर्ड। तो हम जानते हैं कि हम दुनिया में आए हैं, सभी लोग हम जानते हैं कि इंसान के एक बार पैदा होना है, फिर उसके बाद में मृत्यु और मरण है, और हम जानते हैं कि हम लोग अमर नहीं हैं, सदा के लिए यहाँ पर रहेंगे नहीं, एक दिन इस दुनिया को हमें कुछ करके जाना है। तो हम जानते हैं कि हमारे सामने एक सवाल है कि हम जाते हैं तो जाएंगे कहाँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें देखता है कि हमें प्रभु को ग्रहण करना है, विश्वास करना है, उस पर ईमान लाना है। प्रेज द लॉर्ड, उसको स्वीकारना अपने जीवन में। राइट, हम लोग देखता है कि पौलुस और साइलस, पॉल एंड साइलस, once upon a time they were put in prison because they were preaching the gospel। जब वो परमेश्वर सुसमाचार प्रचार कर रहे थे तो इन पॉल और साइलस को जेल में डाल दिया गया। वो लोग परमेश्वर के दुआई देते रहे, गाना गाते रहे, आराधना करते रहे। आधी रात हुआ, धर्मशास्त्र कहता है जो जेल का दरवाज़ा खुल गया और उनके जो चैन जंजीरें टूट गई, और उन लोगों ने परमेश्वर की आराधना करता रहा, और बुडोल हुआ, कहता है कि यद कोई हुआ, और तिलती ढुल गई, और सब जो जेली है उनके वो आज़ाद हो गए, निकल गए। और क्या होता है कि जब जो जेलर है वो जागा और देखा कि सब लोग ना छूट गए हैं, और उन्होंने तलवार लेकर आत्महत्या करना चाहा, अपने ऊपर तो आर वार करना चाहा। तो पौल चिल्लाकर कहता है कि रुको, अपने आप को हानि मत पहुंचाए। तो क्या होता है कि तो हम देखता है कि वो आकर बोले हम लोग सब यहाँ पर है, पौल और साइलस कहते हैं, और वो आकर उनके पैर पर गिर गया और कहा कि व्हाट मस्ट आई डू टू गेट सेव, मैं क्या करूँ ना बचने के लिए, आनंद जीवन पाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए। और पौलुस ने कहा कि बिलीव ऑन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यू एंड योर हाउस होल्ड विल बी सेव्ड। विश्वास करो प्रभु यीशु मसीह पर, तुम और तुम्हारे घराना बच जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, मुक्ति को पाएंगे। तो इस तरह से हम लोग देखता है कि प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लाने से हम लोग मुक्ति को पाते हैं, स्वर्ग धाम हमारा होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसी ने कहा कि इफ़ यू बोर्न वंस यू विल डाई ट्वाइस, इफ़ यू बोर्न ट्वाइस एंड यू विल डाई ओनली वंस। इसका मतलब ये है हम माँ के गर्भ से पैदा होते हैं एक बार, और फिर हमारा मरण होता है दो बार, शारीरिक मौत है के, और एक अनंत काल का मौत है नरक में। और हम जानते हैं अगर हम दो बार पैदा होते हैं माँ के गर्भ से, फिर हम लोग आत्मा से पैदा होते हैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से, और नया सिरे से जन्म ले लेते हैं, तो अब सिर्फ एक मौत मरेंगे, वो है शारीरिक मौत। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा जो मौत, नरक का मौत, हमें उसमें जाना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। राइट, इस एक छोटे से कहानी के द्वारा हम समाप्त करेंगे। एक समय के बाद है, एक नौजवान था, वो हाई स्कूल स्टूडेंट था। उससे पूछा गया कि तुम क्या करना चाहते हो, हाई स्कूल फिनिश करोगे तो क्या करोगे। वो कहता है कि व्हेन आई फिनिश माई हाई स्कूल आई गो टू यूनिवर्सिटी। राइट, तो कहा कि यूनिवर्सिटी में क्या करोगे, डिग्री लेंगे, आई विल बिकम अ डॉक्टर ना, पेशे से आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, एंड यू नो then after that become a doctor, then he said I will make money, मैं पैसा कमाऊंगा, and after that उसके बाद में क्या, I will get married, शादी करेंगे। then उसके बाद वो कहता है कि मैं अपना घर बनाऊंगा। उसके बाद क्या करोगे, then I will have children, and after that he said I will educate my children, मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा विद्वान बनाऊंगा। then उसके बाद में I'll see my children get married, उसके देखेंगे कि हमारे बच्चे सबका विवाह हो जाता है। एंड उसके बाद में तो बोले बाय द टाइम आई विल बी रिटायर्ड, हम रिटायर हो जाएंगे। तो उसके बाद में, रिटायरमेंट के बाद में क्या करोगे, और तो इंतज़ार करेंगे मरने के लिए और मर जाएंगे। तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि आफ्टर दैट आई डोंट नो, हु नोज, कौन जाने क्या होगा। तो हमें दिखता है कि ये नौजवान के लिए और बाकी सुनने वालों के लिए हमारे पास ये वचन के द्वारा जवाब है। कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश या नरक में न जाए, मगर आनंद जीवन स्वर्ग में जाए। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लेने से हमारी ज़िंदगी बदल जाता है और हम स्वर्ग के काबिल हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू। हम लोग इस समय दुआ करें।
प्रेज द लॉर्ड। लेट्स ऑल प्रे। प्रभु जी, आज हम आपको लाखों बार धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों के साथ होना मेरे परमेश्वर, आपके दया आपके अनुग्रह हर एक पर रहे मेरे पिता। आज दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर, आप हर एक को छूना मेरे पिता। आज जो लोग आपको नहीं जानते हैं, आपको नहीं पहचाने परमेश्वर, स्वीकार नहीं किया, जिस तरह से आपके वचन कहता है कि यीशु मसीह को हम अपने जीवन में लें, जैसा कैसा इंसान क्यों ना हो हम। और प्रभु यीशु मसीह, तू हमारे लिए इंतज़ाम किया है स्वर्ग स्थान, तूने कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ और हमारे पापों को हर लिया है प्रभु जी, और हमारे लिए रास्ता खोला, और तू इंतज़ार करता है हमें स्वर्ग में। और प्रभु जी, जिस दिन हम आँख को बंद करेंगे ये पृथ्वी पर, स्वर्ग में आँख को खोलेंगे प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं हर एक लोग आपको स्वीकारें, ताकि ये प्रॉमिस उनके लिए भी हो सके, ये जो वादा तूने किया है हमारे लिए ये उनका भी हो सके। प्रभु आज प्रार्थना करते हैं जितने लोग आज सुनने वाले के साथ होना, उनके दिल दिमाग को छू मेरे परमेश्वर। फादर गॉड, ऑल्सो आई प्रे फॉर दोज हु आर सिक, दो बीमार है मेरे परमेश्वर, रोगी है, समस्या पड़े हुए मेरे परमेश्वर, किसी न किसी हालात में ऐसे है मेरे परमेश्वर, निकलना चाहते हैं प्रभु, हम दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर, उनको तू छू और छू कर चंगाई दे मेरे पिता, उनको उस हालात से निकाल। ये मेरे परमेश्वर, जानते ही तू जीता जागता प्रभु है और प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु है। पिता धन्यवाद। ये मेरे परमेश्वर, आज हम खास कर प्रार्थना करते हैं हर एक हमारे प्रॉमिस लाइफ अनुग्रह के मेंबरान जहाँ भी हो मेरे परमेश्वर, हमारी आवाज़ को सुनते हैं परमेश्वर, उनको तू आशीष देना, रक्षा करना, मदद करना, ताकि मेरे परमेश्वर ये कोविड के दौरान प्रभु जी हर एक के दिल में तसल्ली रहे, हिम्मत रहे मेरे परमेश्वर। जानते जो कुछ भी होता है आपके नज़रों में अच्छाई के लिए होता है परमेश्वर, इसमें हर एक के लिए भलाई होए प्रभु। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, हर एक के साथ रक्षा करना पिता। ये प्रार्थना महान मुक्ति आता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन एंड आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा सवेरा तेरे सिवा है न कोई मेरा।